नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear, you are watching your favorite program Iqra, and I am your host Dr. Jamil Rathor. In this particular religious Quranic program, we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. So according to the format and discipline of our program, first we shall give you the recitation of holy verses. And our today's program consists of verse number 1 to 6 of Surah of chapter Hamim As-Sajda. That means today we also start another Surah Mubarakah or chapter of Holy Quran Majid, Furqan Hamid. And today we start Hamim As-Sajda. And you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, when Quran is recited, hear it properly, attentively, and be silent, so that you may have mercy. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه
فاستغفروه وويل للمشركين صدق الله العظيم. Dear viewers, you are listening the holy verses of Al-Quran, and definitely we are feeling the grandeur and sweetness of Al-Quran. And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the verse into words. And you are requested to repeat with me for better and fluent recitation of Al-Quran. Hamim, Hamim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Tanzilun minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat. Kitabun fussilat. Ayatuhu Qur'anan عربيا لقوم يعلمون عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. Dear viewers, the second segment of our program has completed. Now we come to the final and very, very important segment of our program, because in which we give you this lesson in several types. First we recite verse by verse, and these verses become prominent on your television screen. And then we translated or romanized these verses, particularly for those viewers who are unfamiliar with Arabic alphabet as compared to English alphabet. And this exercise is followed by Urdu and English translation. And in the end, we also give you the brief explanation of these holy verses of Al-Quran. So this is very important segment, because in which we give you translations, recitations, as well as explanations of the Holy Quran. So keep on watching this program and stay with us. Hamim.
Bismillahirrahmanirrahim. In Urdu, हामीम. उतारा गया है ये कुरान रहमान और रहीम की तरफ से. In English, Hamim. This is a sending down from the most affectionate, the merciful. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. ये ऐसी किताब है जिसकी आयतें तफसील से बयान कर दी गई हैं. ये कुरान अरबी ज़बान में है. ये उन लोगों के लिए है जो इल्म फहम रखते हैं. In English, this is a book whose verses have been fully explained, an Arabic Quran for a people of understanding. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ये मुजदा सुनाने वाला और बरवक्त खबरदार करने वाला है. मुंह फेर लिया उनमें से अक्सर ने, बस वो इसे कबूल नहीं करते. Bearing glad tidings and warning, but most of them turned away their faces and listened not. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. इन उर्दू, और उन हट धर्मों ने कहा कि हमारे दिल गिलाफों में लिपटे हुए हैं उस बात से जिसकी तरफ आप हमें बुलाते हैं, और हमारे कानों में गरानी है, और हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब है. तुम अपने काम करो, हम अपने काम में लगे हुए हैं. And they said, our hearts are in covers from that to which you invite us, and in our ears are plugs, and between us and you there's a curtain. Therefore, you do your work, and we are doing ours. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. قل إنما أنا بشر مثلكم
यूहा इलय्या अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन फस्तकीमू इलैहि वस्तगफिरू। आप फरमाइए, मैं इंसान ही हूं बज़ाहिर तुम्हारी मानंद, अलबत्ता वही की जाती है मेरी तरफ कि तुम्हारा माबूद खुदावंद यक्ता ही है। बस मुतवज्जे हो जाओ उसकी तरफ और मग़फ़िरत तलब करो उससे। Say you, in being a human being, I am indeed like you. It is revealed to me that your God is one God. So be straight before Him and beg forgiveness from Him. وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ववैलुल लिलमुश्रिकीन इन उर्दू, और हलाकत है मुशरिकों के लिए। And woe be to the associators. नाज़रीन इकराम, हमारा आज का सबक एक नई सूरह मुबारका के आगाज़ के साथ है। हामीम अस-सजदा का आज हमने आगाज़ किया है और ये सूरह मुबारका भी क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की अक्सर सूरह मुबारका की तरह, और बल्कि पहली ही सूरह मुबारका सूरह बक़रा, उसका आगाज़ जब होता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हरूफ मुक़त्तआत के बाद क़ुरान की अज़मत को बयान किया जाता है। यहाँ पर भी हामीम सूरह हरूफ मुक़त्तआत में से है और उसके बाद क़ुरान के नुज़ूल की बात की जा रही है, तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम, कि तुम क़ुरान के मुताल्लिक़ शुकूक व शुबहात में गिरफ़्तार हो जाते हो। नहीं, ये क़ुरान तो वो है जो इज़्ज़त वाले रहमान रहीम, बहुत ज़्यादा मेहरबान और रहम करने वाले खालिक तबारक व तआला की जानिब से नाजिल किया गया है। चुनांचे इन आयात में क़ुरान की अज़मत को बयान किया गया, उसके बाद बताया गया कि ये वो किताब है फुस्सिलत आयातुहु क़ुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून, कि क़ुरान मजीद ना सिर्फ़ अरबी ज़बान में है बल्कि इसके अहकामात बड़ी तफसील के साथ बयान कर दिए गए हैं। और जब क़ुरान की इन तफासील की आयात को हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये हुआ करता है कि क़ुरान में अगर किसी चीज़ का इशारा भी दे दिया गया है तो यकीनन क़ुरान का एक एक लफ्ज़ अपने अंदर मानी के समंदरों को समो दिया करता है। क़ुरान में नमाज का हुक्म है, उसकी तफसील हमें कहाँ मिलती है? साहिब क़ुरान से मिलती है। इसलिए कि क़ुरान और साहिब क़ुरान कोई अलहदा चीज़ें नहीं है। क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हुज़ूर के अखलाक का नाम है। क़ुरान को अगर हम शक्ल व शबाहत दे दें तो वो सरवर कौनैन की शक्ल इख्तियार कर लेगी, और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर हम मतने हरूफ का शक्ल दे दें, यानी अल्फाज की शक्ल दे दें, तो वो क़ुरान बनता चला जाता है। लिहाजा क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जो बयान होता है उसकी तफासील अहादीस नबविय्या से और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें सीरत मुहम्मद मुस्तफ़ा से मिला करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक अज़ीमुश्शान हकीकत को उजागर किया कि क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अरबी ज़बान में है। अभी क्यों बताया? इसलिए कि कुफ़ार व मुशरिकीन अजीब व गरीब एतराज़ किया करते थे। कभी वो ये कहते थे कि अगर आप नबी हो तो आप हमसे मुख्तलिफ क्यों नहीं हो? आपके हज़ारों पर होने चाहिए थे, आप फ़रिश्तों की मानिंद होने चाहिए थे, और ये जो क़ुरान आप पढ़ कर सुना रहे हैं तो हमारी ही ज़बान है, ये किसी और ज़बान में होना चाहिए था। अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरान में हमें बताया कि अल्लाह ने जितने भी अम्बिया भेजे हैं, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमी, उनको उन्हीं कौम की ज़बान पढ़ाकर, उन्हीं कौम की ज़बान में उलूम सिखाकर भेजे हैं। और इसके अलावा जितने भी अम्बिया अल्लाह ने भेजे हैं वो सारे के सारे रब्ब कायनात ने बशर बनाकर भेजे हैं, लिबास बशरियत पहना कर भेजे हैं। अगर दूसरी ज़बान हुजूर पढ़कर उन्हें अहकामात देते तो उनकी अक्ल पर मातम करने को दिल चाहता है। वो दूसरी ज़बान समझ सकते थे? नहीं समझते। कहते जनाब ये आप कौन सी बोली बोल रहे हो, कौन सी ज़बान, कौन सी आप लैंग्वेज में गुफ्तगू कर रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रही। अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मलाइका की शक्ल में भेज दिया जाता किसी नबी को, तो वो कहते जनाब आपके पर हैं, हमारे हाथ हैं, आप हवाओं में उड़ते हो, हम ज़मीन में चलते हैं, आप पे कायदा दूसरा लगता है, हम पे दूसरा लगता है, हम आपकी तरह किस तरह इबादत कर सकते हैं? लिहाजा अल्लाह ने हर नबी को उसकी ज़बान में भेजा,
हर नबी को अल्लाह ने मर्द बनाकर भेजा, लिबास बशरियत पहनाकर भेजा, ताकि कोई एतराज़ न कर सके कि साहब ये कमी है, ये कजी है, ये इख्तलाफ है। चुनांचे ये इन आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।